آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کشمیر کا لائیو براڈ کاسٹ، اور اس وقت ہم خانقاہ مولا سری نگر میں موجود ہے، جس کو سلطان سکندر نے لگ بھگ 13ویں صدی میں بنوایا تھا حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے یاد میں۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس کا ویو دکھانا چاہیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جموں کشمیر کے سب سے قدیم آستان عالیوں میں سے ایک آستان عالیہ ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مانا جاتا ہے کہ شہر سری نگر کا پہلا آستان عالیہ یہی تھا، جس کو لگ بھگ 13ویں صدی میں سلطان سکندر نے بنوایا تھا۔ اس کے بعد کئی بار اس میں جو ہے آگ کی واردات بھی پیش آئی، لیکن جو اس کی روایت ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اس کو بر وقت سجایا بھی گیا ہے، اس کو رینوویٹ بھی کیا گیا ہے۔ اگر اس پلیس کی، اس آستان عالی کی خصوصیت دیکھی جائے، خاصیت دیکھی جائے، تو یہ سارا جو ہے یہ لکڑی کا بنا ہے۔ یہاں پر اس پہ جو کاریگری کی ہوئی ہے یہ پیپر میشی کی کاریگری کی ہوئی ہے، اور اندر کی اگر بات کی جائے تو اندر سے بھی پیپر میشی کی کاریگری کی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ستون لگے ہیں یہ ستون بھی جو ہے لکڑی کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ان ستونوں پہ بھی کاریگری کی گئی ہے، یہ بھی پیپر میشی کی ہی کاریگری ہے۔ یہاں پر ناظرین آپ کو بتا دیں، اس آستان عالیہ کی یہ خاصیت ہے کہ جو شاہ ہمدان تھے، جن کو علی ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کو امیر کبیر بھی پیار سے کہا جاتا ہے، وہ 13ویں صدی میں ایران ہمدان سے جو ہے یہاں آئے تھے۔ یہاں پر اس نے اسلام کی ٹیچنگز، اسلام میں کیا کچھ کہا گیا ہے، کیا کچھ لرننگس ہے، کیا کچھ ٹیچنگس ہے، وہ یہاں کے لوگوں کو سمجھایا، یہاں کے لوگوں کو بتایا، اور اپنے ساتھ وہ لگ بھگ 700 کاریگروں کو یہاں لے کے آئے تھے، جس سے یہاں کا کرافٹ بھی ڈیولپ ہوا۔ چاہے پیپر میشی کی بات کی جائے، یہاں کندہ کاری کی بات کی جائے، یہاں ہم مختلف اور بھی کاریگر آئے جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو جو ہے کاریگری سکھائی، جس میں جیسے میں نے آپ سے کہا پیپر میشی کا کام یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کیا ہوا ہے۔ یہ سارا جو پیپر میشی، کندہ کاری، شال بافی کا جو کام ہے یہ یہیں سے شروع ہو کے پھر دیگر ریاستوں تک پھیلا ہے، اور دیگر ریاستوں میں بھی لوگوں نے جو ہے اس کام کو سیکھ لیا۔ یہاں پر اگر ڈاؤن ٹاؤن کی بات کی جائے تو ڈاؤن ٹاؤن کی لیگیسی ہی جیسے کرافٹ سے منسلک ہے، تو وہ کرافٹ کی شروعات جو ہے یہیں سے ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پورا ویو دکھا رہے ہیں ہم۔ یہاں پر اکثر جو ہے ہر سال 6 ذی الحجہ کو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ہوتی ہے، جو کہ بڑے ہی عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے، جس پہ شب بیداری بھی ہوتی ہے۔ شب بیداری کے ساتھ ساتھ جو ہے شب بیداری کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے یہاں نماز ادا کرنے آتے ہیں، درود و اذکار کرتے ہیں، نعت خوانی اور منقبت خوانی میں بھی جو ہے حصہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مجور موجود ہے جو کہ تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم ان سے تھوڑا بہت بات چیت کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس کی اہمیت کتنی ہے، آج بھی لوگ کس طریقے سے یہاں پر محفلیں سجاتے ہیں؟ اس کی اہمیت بہت ہے کیونکہ یہ مرکز اسلام ہے۔ شاہ ہمدان یہاں پر آئے، حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی، جس کو لقب دیا ہے علی ثانی، وہ یہاں پر آئے 3 دفعہ، اور یہاں کے لوگوں کو یہاں پر اس وقت کفرستان تھا، مسلمانوں میں کوئی تلوار نہیں اس نے استعمال کی، اپنی روحانیت کی وجہ سے یہاں پر اس نے اسلام پھیلایا، دین اسلام سے کشمیر کے لوگوں کو منور کر دیا، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی بہت اہمیت ہے، یہ مرکز اسلام ہے، یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اوراد اذکار، درود اذکار پڑھتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، جس ملت سے ہوتے ہیں، یہاں کسی کو اعتراض کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہاں پر جگہ علیحدہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے ان کی جگہ علیحدہ ہم نے پورشن رکھا ہے، عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بالکل، یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہیں گے نہ صرف مذہبی تبلیغ بلکہ وہ اپنے ساتھ کرافٹس مین کو یہاں لے کے آئے تھے، کاریگروں کو یہاں لے کے آئے تھے، اس پہ تھوڑا سا آپ جو ہے روشنی ڈالیں۔ حضرت شاہ ہمدان نے یہاں پر لائے 714 اپنے ساتھ سید السادات، جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو
खाली दीन इस्लाम ही नहीं दिया बल्कि तहजीब तमन्नुन सन्नत हिरफत कालीन बाफी की उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम के साथ साथ हमें अपनी रोजी की भी कमाना है उसके लिए तरबियत दी या मुसलमान कश्मीर के लोगों को उसने आलमी दुनिया में जगह दिलाई इसमें अंदर जो है क्या कुछ ज़ियारत है, अब थोड़ा सा उस पर भी रोशनी। यहाँ पर है अलम मुबारक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसके पीछे शाना मुबारक रखते थे और ये हसनैन इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनको भी ये करबला में मौजूद है ये इनको वरासत में मिले हैं इन्होंने ये रखे हैं कश्मीरी लोगों के लिए यहाँ एक नजराने के तौर पर ताकि किसी वक्त यहाँ पर कोई मज़र आए तूफ़ान आए कुछ आए तो उस वक्त ये निकालेंगे और ईद का तल ले जाएंगे नफल करेंगे इसको वहाँ ले जाएंगे फिर वहाँ से पहले हम 3 दिन यहाँ उसमें पढ़ते हैं खदमात शाम को दुरूद अज़कार फिर इसको तीसरे दिन हम ईद का ले जाते हैं खुदावंद करीम उससे यहाँ नजात तो ये जो अलमी शरीफ के बारे में आपने जिक्र किया तो मतलब जब कोई मुसीबत आती है जब कोई मुसीबत एक पूरे समाज पे आयद होती है तभी इस अलमी शरीफ को बाहर निकाला जाता है क्या कश्मीर में। जी जी जी, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि इससे पहले कभी ये कश्मीर में ऐसा हुआ है कि इसको निकाला गया? हाँ इसको पहले निकाला 1963 में उस वक्त मैं खुद छोटा था 6वीं किस क्लास में पढ़ता था यहाँ बारिश नहीं 1 महीने नहीं रुकती थी फिर लोगों ने इसरार किया फिर इसमें हजरत सईद मीर शाह रहमतुल्लाह यहाँ एक बड़े बुजुर्ग है इसमें बुजुर्ग का इजाज़त होना चाहिए ज़रूरी उसने इजाज़त दिया फिर 3 दिन यहाँ औराद अज़कार के दरूद अज़कार पढ़े तौबा इस्तिग़फ़ार किया 3 दिन के बाद उसको ईद का लिया और शाम को जब वहाँ से वापस आए खुदा ताला ने हमारा दुआ कबूल किया उसने बारिश बंद हो गई हर चीज़ उसी तरह हो गई जिस तरह पहले था। अच्छा आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे अंदर जो डिज़ाइन है अंदर जो पेपर मैशी की गई हुई इसके अलावा अंदर क्या कुछ कारीगरियाँ की गई हुई? अंदर है पेपर माशी का काम हर जगह है कुरान शरीफ लिखा है इस पर आज चारों दीवारों से वो इसके सतून जो है वो लकड़ी के है क्योंकि ये सारा लकड़ी का बना हुआ है इसमें कुरान लिखा है हर जगह कुरान ही कुरान है कहीं नहीं और कुछ नहीं है जहाँ पर वो बैठते थे उधर है उसका हुजरे पाक वहाँ भी कुरान ही लिखा है हर जगह कहीं नहीं कुछ नहीं वहाँ पर खाली है हमें वही अलम मुबारक अलमारा में खड़ा है वो लोगों को देखने के लिए ताकि वो देखेंगे क्या है क्या लोग इसकी ज़ियारत करें। ये इस आस्थान की आज भी लोग जो है कश्मीर पूरे वादी कश्मीर से यहाँ लोग आते हैं इसके अलावा इसकी खूबसूरती को देख के टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं टूरिस्ट बहुत आते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कहते हैं इस जैसा हमने कहीं नहीं देखा है ये बहुत खूबसूरत ज़ियारत है क्योंकि ये यहाँ हर जगह जार लगे हैं बहुत लगे हैं महाराजा के वक्त के भी है उससे पहले के ये उसी वक्त के है उस यहाँ पूरा टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो तारीफ ही करते हैं कि इस जैसा जगह कहीं। अच्छा यहाँ पे अंदर जो है जार्स भी लगे हैं ये कब लगाए गए हैं ये जार्स क्या इनमें से कोई जार ऐसे भी है जो कि पुराने हैं या कदीम हैं? इसमें पुराने कदीम जार बहुत है और नए भी लगाते हैं अब हमने बंद कर दिया कि नए लगाना है क्योंकि वहाँ अब पूरी ये हो गई अब बंद हो गई जगह अब कहीं नहीं जगह है तो बाकी ठीक है कोई नजराना लाता है लगाते हैं बाकी ये कदीम है इसमें। अच्छा इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं क्योंकि देखिए ये पेपर मैशी कभी पुरानी भी होती होगी या कई बार इसमें आग की वारदातें भी पेश आई है तो इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं ताकि ये जो आर्ट है ये क्राफ्ट है मेंटेन? हम करते हैं इसको मेंटेन पैसे लगाते हैं इसमें कारीगर लाते हैं यहाँ कश्मीर में कारीगर है इसके वो आते हैं 2 साल 5 साल के बाद इसकी पॉलिश करते हैं पेपर माशी नया करते हैं वही मगर वही डिज़ाइन रहता है जो पहले से डिज़ाइन था वही रहता है। तो यहाँ पर उर्स मुबारक की अगर बात की जाए तो उर्स मुबारक के दौरान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं आज भी लोगों के यहाँ जो अकीदत मनाते हैं उनके मन में कितना अकीदत भरा है और कितना मोहब्बत भरा है शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह को लेकर। मुबारक के दिन यहाँ लाखों लोग आते हैं वादी कश्मीर के हर कोने कोने से आते हैं लोग कि वो आते हैं और अपनी ज़ियारत यहाँ करते हैं और दुआ मांगते हैं उनकी मुदा होती है वो आते हैं लाखों लोग हर जगह होते हैं और इसमें क्या है। अच्छा यहाँ पर अकीदतमंदों के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ रखी गई है?
अकीदत मंदों को क्या फैसिलिटीज है, वो आते हैं शाम को वापस जाते हैं अपने अपने घर में, यहाँ कोई लंगर शंगर नहीं है। यहाँ अकीदत मंदों के लिए हर चीज़ रखते हैं मैसर उस उर्स मुबारक के दिनों पर, जो चीज़ उनको ज़रूरत होती, मगर रात को यहाँ पुलिस सिक्योरिटी की वजह से यहाँ रात को ठहरने नहीं देते, क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी का मसला है, तो अब यहाँ ठहरने नहीं दे। लंगर वंगर यहाँ पर कुछ नहीं, पहले था यहाँ लंगर, अब नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए क्या कुछ अलग अलग सिस्टम रखा गया है, अलग अलग सी जगह है उनके लिए? नहीं ऊपर लेडीज का जगह हमें 2-3 जगह ऊपर भी रखा, नीचे भी उनको अलहदा इबादत करने के लिए, क्योंकि वो दीन भी हमें कुरान भी कहता है लेडीज मर्दों के पीछे ही नमाज अदा करनी चाहिए, उनके लिए हमने पूरे जगह अलहदा रखा है, वहाँ पर वो अपनी नमाज अदा करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और दरूद अज़कार पढ़ते हैं, उनके लिए अलग जगह। अच्छा, यहाँ पर जो है ज़ियारत के साथ ही वो मुंसलिक है। अच्छा, यहाँ पर जो अगर आसपास की मार्केट की भी बात की जाए तो उनका भी रोजगार जो है इसी से चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं उनकी जो रोजी रोटी है उसी से चलते हैं, तो इनका मुनाफा कितना होता है जब यहाँ पर जो है उर्स मुबारक होता है? बहुत मुनाफा होता है लोगों को, वो काम करते हैं, लोग आते हैं लेते हैं यहाँ पर, वो बाकी लोग भी आते हैं, वो अपने रेट छापरी फरोश बनते हैं, वो डालते हैं यहाँ पर, अपनी रोजी कमाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए तो उन्होंने जो चीज़ें सिखाई है, बताई है, लोगों तक पहुँचाई है, क्या आजकल के दौर में उन सिखाई हुई चीज़ों पे अमल होती है क्या? हाँ, हर चीज़ पर अमल हो जाए कि ये पेपर माशी उसी वक्त का काम है, पश्मीन बाफी वो भी चलती है, कालीन बाफी वो भी करते हैं, लोग करते हैं यहाँ, वही उसी के देन से वो अपना रोजी रोटी कमाते हैं, जो उसने दिया हमें। कालीन बाफी देखो कश्मीर के हर जगह मशहूर है, पश्मीन बाफी पेपर माशी कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? अगर हमें ख़राब हो जाता है तो यही लोग आते हैं जो यहाँ कश्मीरी होते हैं वो करते हैं। तो दीनी लिहाज से जो चीज़ें सिखाई गई थी, जो चीज़ें बताई गई थी, क्या उस पर अमल होता है? हाँ ज़रूर होता है, लोग इस पर अमल करते हैं, नमाज के लिए तलकीन किया है, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए दरूद अज़कार, हर चीज़ उस पर चलने की, जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत दिया उसी पर यहाँ भी फिर तलकीन और यहाँ के मौलाना साहब करते हैं कि इस पर अमल करो, ये करो, ये गलत कामें मत करो, सच बोला करो, झूठ नहीं करना, अपने घरों में भी दीन की इशाअत करो, घरों में रखो, दीन की तरह चलो, कुरान शरीफ पढ़ो, औराद अज़कार पढ़ो। औराद फ़तह हमें शाह हमदान ने रखी है, जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है, जिसके लिए उससे हर चीज़ का नजात मिलता है, वो हमें ख़ास तोहफ़ा हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी शाह क़द्दसल्लाहु ने रखा है, वो हर रोज़ यहाँ सुबह भी पढ़ते हैं और नमाज अशिया के बाद भी पढ़ते। अच्छा, और हर मस्जिद में हर ज़ियारत पर वो औराद फ़तह पढ़ी जाती है, नमाज फजर के बाद और नमाज अशिया के। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो यहाँ पर अगर बात की जाए आजकल के नौजवानों की, आजकल के नौजवान बहुत गलत गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन का काम है, चाहे आपने देखा कि कितने गुनाहों में वो मुब्तला है, जो कि समाजी तौर भी सही नहीं है और कानूनी तौर भी सही नहीं है। क्या उनको जो शाह हमदान, यहाँ हम जो सूफ़ी कल्चर जो यहाँ था, जिनके नामों पर ये आस्तान आलिया बनाए गए हैं, उन्होंने वो दरस जो दिया था, क्या उनके दरस पे यहाँ के नौजवान आजकल अमल कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें अब अमल करना चाहिए? हर जगह यहाँ पर हम दरस देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, चीज़ें है इस वक्त कश्मीर में बहुत ये बेहयाई हो गई है, घर में पता ही नहीं चलता है। हमारा काम है लोगों तक अपना दीन पहुँचाना, आगे अमल करना ये लोगों तक है, और गवर्नमेंट भी अब कर रही है कोशिश कि ड्रग्स नहीं होने चाहिए, वो इसमें पाबंदी लगी, और हर ज़ियारत हर मस्जिद में मौलाना तलकीद करते हैं कि ये काम नहीं ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है उस पर चलना चाहिए, उसके लिए ज़बरदस्त तलकीन हो रही। इंशाल्लाह अब बहुत कम हो गया, अब ये ड्रग्स वगस के बारे में हो गई है, अगर रुकावट बहुत, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ हमने जो कि इस आस्तान आलिया के मुजव्विर हैं उनसे भी बात की, तो थोड़ा बहुत इन्होंने भी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, तो और उसके अलावा इन्होंने कहा कि किस तरीके से अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया है, उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, और किस तरीके से तब से 13वीं सदी से लेके आज तक जो है
लगातार जो लोग जो है क्राफ्ट से मुंसलिक है वो अपना रोजगार इस पे चलाते हैं. आज भी अगर आप देखेंगे डाउनटाउन की ये लेगेसी और हेरिटेज रही है कि अगर आप यहाँ कहीं भी जाएंगे तो यहाँ आपको कोई कुंदाकारी करने वाला मिलेगा, कोई पेपर मैशी करने वाला मिलेगा, कोई शाल बाफी करने वाला मिलेगा. तो यहाँ पर हर किस्म का आर्ट एंड क्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा. हालांकि अगर आप यहाँ से थोड़ी ही दूर बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आपको जो है कॉपर मार्केट भी मिलेगी. वहाँ पे आपको अलग अलग किस्म की मार्केट्स मिलेंगी, जिन मार्केट्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ताल्लुक है वो इसी आर्ट एंड क्राफ्ट से है जो यहीं से शुरू हुआ है. तो ये हमने आपको थोड़ा सा यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का आर्किटेक्टल रेलिवेंस जो है, उसके अलावा रिलीजियस रेलिवेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस जो इस प्लेस की है उसके बारे में बताया. न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आफाक शाह के साथ फजा जाना.